Let us continue with the topic of simple harmonic motion. Till now, we have learned how simple harmonic motion can be mathematically represented by making use of a rotating vector. So if you imagine that a vector has been constrained or pin jointed at its tail end, and the rest of the body of the vector is allowed to rotate in counterclockwise direction, then it will generate two projections on the ordinate and abscissa, or rather in layman terms, you can call it as the y-axis and the x-axis. The lengths of these projections represent simple harmonic motion. Please remember, I repeat, do not remember simple harmonic motion as a rotating vector. You should remember simple harmonic motion as the projection of a rotating vector either on the y-axis or on the x-axis. So these two are simple harmonic motions. We saw that if you differentiate any of these two quantities twice, then you get a differential equation of motion, this one. And this is the standard differential equation of motion of simple harmonic motion, which you have to remember now. So if you try to construct the differential equation of any moving object, and if you find that the differential equation of motion of the moving object matches or is similar in construct with this shown equation, then you can say with guarantee that the moving object is executing simple harmonic motion. That's all. Okay, this we had studied. Then we had studied the concept of phase angle or phase difference. And we had learned that phase difference or phase angle is nothing but the relative gap between the time of starting of two waveforms. That's all. So if a waveform has started earlier, for example, this smaller wave as shown in this figure, you can see two waves here. One wave is blue colored, other wave is red colored. So you can see that the red colored wave is starting later in time. So we will say that the red colored waveform or the red simple harmonic motion is lagging behind the blue colored waveform because the blue colored waveform started earlier in time. And this horizontally measured gap is the phase difference. And since you are taking omega t, which is angle in radians, so phi is an angle which is measured in radians or degrees, and you have to represent it in your mathematical equation like this. So plus phi means leading, minus phi means lagging. So in this case, you can say that y1 is lagging behind y2 by a phase angle of phi. Or you can say that y2 is leading y1 by a phase angle of phi. So this is the concept of a leading phase or a lagging phase. And the simple concept about a phase that you have to remember is whether a waveform started earlier in time or later in time. That's all. And now today, we are going to discuss addition or subtraction of simple harmonic motions. Now see, addition or subtraction of simple harmonic motions can be obtained in a mechanical manner, or rather you can say that automatically, or just performing a mathematical function of addition, you can easily obtain the result. But you should actually understand what is the significance of adding or subtracting of two SHMs in real life. See, first of all, you have to keep in mind some few examples of simple harmonic motion. कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन रियल लाइफ में दिखता कैसे है. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इफ somebody out of the blue comes and asks you, भैया जल्दी से सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल बताओ, तो सबसे भिड़ते ही सबसे पहले तो आपके माइंड में कौन सा एग्जांपल आना चाहिए, आप बताओ. Which is the simplest example that you can quote as the perfect example for simple harmonic motion? Anybody? स्प्रिंग मास सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम कह सकते हैं, और उससे भी ज्यादा कनेक्ट होने वाली चीज सिंपल पेंडुलम. भाई आपका सिंपल पेंडुलम, या जैसे इन्होंने स्प्रिंग मास सिस्टम बोला,
सी दिस, एक स्प्रिंग लटका दो और एक मास लटका दो और इसको खींच करके छोड़ दो, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा अप एंड डाउन, दिस विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोर और लेस. ओके, assuming that there is no loss in the vibration of the spring. Even simpler example is the simple pendulum, the to and fro motion of a simple pendulum. This is the best example of SHM. Now, what is the meaning of addition or subtraction of SHMs? एक तो है कि आपके ये सिस्टम्स अपने आप ही ऑसिलेट करें, तब तो वो SHM एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं. लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपने हाथ से पकड़ करके या किसी मशीन को एंगेज करा करके इस मास को अप डाउन मूव कराऊं, यानी कि एक्सटर्नल एक्साइटेशन दूं इसको, और उसी तरीके से ये मास ऑफ द पेंडुलम विल ऑसिलेट ऑटोमेटिकली बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन इट्स ओन. इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है. लेकिन क्या मैं इसको एक मशीन से कनेक्ट करके एक अपनी खुद की निर्धारित फ्रीक्वेंसी पे इसको स्पीड बढ़ा के ऑसिलेट नहीं करा सकता? आप मेरे को बताइए जरा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? What do you think? Anybody? कर सकते सर. बिल्कुल कर सकते हैं. That is called as external excitation. आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस में एक कैटेगरी पढ़ी होगी जो अपन ने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ी थी, फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस. तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या चीज होती है? यही होती है कि आप किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने में अलाउ नहीं कर रहे. यू आर फोर्सिंग योर ओन फ्रीक्वेंसी ऑन इट. तो आप अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको दे सकते हो. यू कैन एक्सटर्नली प्रोवाइड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ योर फ्रेंड कम्स इन, तो बोला यार तू क्या कर रहा है, पेंडुलम को हिला रहा है? तो बोला कि ला मैं भी हिलाता हूं तेरे साथ में. सो नाउ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन यू. तो वो क्या करेगा? आपने यहां पर पकड़ रखा था इसको, यू आर होल्डिंग इट हियर एंड यू आर ऑलरेडी ऑसिलेटिंग द पेंडुलम विथ योर हैंड्स. आप अपने हाथों से सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे थे इसको. तो आपका दोस्त बोल रहा है कि मैं भी देता हूं. वो उधर ऑपोजिट साइड में खड़ा हो गया. नाउ ही इज आल्सो होल्डिंग द पेंडुलम, द सेम पेंडुलम दैट यू आर होल्डिंग, एंड नाउ बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू इंपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन योर ओन राइट. तो बोलते हैं अपन एक काम करते हैं, मैं अलग फ्रीक्वेंसी दूंगा और तू अलग फ्रीक्वेंसी देगा, तो ये अपना तालमेल नहीं बैठ पाएगा. तो बोलते हैं कि लेट अस गिव द सेम फ्रीक्वेंसी. सो बोथ ऑफ यू आर गिविंग द सेम फ्रीक्वेंसी टू इट, बट बोथ ऑफ यू आर गिविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन आपका दोस्त जो है वो इस पेंडुलम को यहां तक नहीं, इससे आगे तक ले जाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू टेक इट फर्दर, बट यू वॉन्ट टू कर्टेन इट अप टू दिस पॉइंट ओनली. तो आप तो इसको यहां तक चला रहे हो, लेकिन आपका दोस्त इसको आगे तक ले जा रहा है. सो वॉट विल हैपन इवेंचुअली? आप दोनों जोर जबरदस्ती करके एक ही फ्रीक्वेंसी पे इस पेंडुलम को आगे पीछे फोर्सफुली चला रहे हो, दोनों मिलके पकड़ रखा है आपने. तो ये पेंडुलम बिहेव कैसे करेगी आखिरकार? ये आपके चलने के हिसाब से चलेगी, आपके दोस्त के चलने के हिसाब से चलेगी, या आपको क्या लगता है इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन which would be a sum total or a consequence of the combination of the effort of both you guys? क्या लगता है आपको? Anybody? पहले जो आदमी चला रहा था पेंडुलम उस हिसाब से चलेगी, या बाद में जो एक पार्टनर आ गया चलाने के लिए उसके हिसाब से चलेगी, या दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से कुछ चलेगी? क्या लगता है? आर यू लिसनिंग? सर दूसरे वाले के हिसाब से. नहीं, इट विल रन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द पीपल. क्योंकि आपने दोनों ने आखिरकार पकड़ तो रखा ही है पेंडुलम को. आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने पेंडुलम को चलाने की कोशिश जारी रखी हुई है. तो पेंडुलम के ऊपर इफेक्ट तो दोनों का ही जा रहा है ना. यस सर.
So eventually पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन ना आपके हिसाब से करेगी ना आपके फ्रेंड के हिसाब से करेगी. इट विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन with an effect somewhere in between what both of you are trying to achieve. ठीक है. तो अब अपन ये जानना चाहते हैं, भाई ये तो समझ में आ गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक दूसरे के ऊपर इंपोज की जा सकती हैं. मैंने एक क्रूड सा एग्जांपल दिया है जिससे कि two people are trying to impose their own simple harmonic motion on an object. So what will be the actual motion of the object as a result of the combination of two SHMs? तो इसकी जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसको अपन कैसे करते हैं वही यहां पर दिखाया गया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस. When two simple harmonic motions having same frequency, देखो ये ओमेगा जो है इसको मैं कई बार अब से आपको फ्रीक्वेंसी कहूंगा, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हालांकि सिंबल ये देना चाहिए एफ एन, या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी को सिंबल देना चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ, और इसकी यूनिट होनी चाहिए हर्ट्ज में. बट यू विल फाइंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दैट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद और आपकी कई सारी टेक्स्ट बुक्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट ना करके ये जो ओमेगा आता है अपना रेडियन पर सेकंड में, इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारना चालू कर देते हैं. और इसमें कोई बहुत ज्यादा गलत बात भी नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि क्या ओमेगा इक्वल टू 2πf नहीं होती क्या? पहले तो ये बताओ. किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सा अगर आप फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज निकालें और उसकी रेडियंस पर सेकंड में ओमेगा निकालें, तो ओमेगा और उस फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. तो f को अगर मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी के साथ में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई ही तो किया है मैंने, इसको चेंज तो किया नहीं है. इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी यू आर गेटिंग ओमेगा. तो इसलिए इसको भी कई बार फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, और थोड़ा सा और टेक्निकली करेक्ट टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और f जो है f को सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपन. दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और कई बार लेक्चर्स के अंदर और टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये एंगुलर वर्ड को कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा ओमिट कर दिया जाता है. सो दे समटाइम्स कॉल ओमेगा ऑल्सो एज फ्रीक्वेंसी. तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप ओमेगा को ये बार बार फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हो. ठीक है, मैंने इसका रीजन आपको बता दिया. तो when two simple harmonic motions having same frequency are superimposed on each other, then the resultant is also simple harmonic motion. पहली बात आपको यह समझनी चाहिए कि आप अगर एक दो तीन चार पांच खूब सारी सिंपल हार्मोनिक मोशंस को एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करते चलें, तो आपको सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि भैया ये सारे एसएचएम जो एक दूसरे के ऊपर आप पटक रहे हो उन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं है. और अगर ये जवाब आता है कि हाँ सारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट होने वाला है, यानी कि क्या इनका नेट टोटल क्या बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी बनेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. दिस यू कैन बी 100% श्योर ऑफ. अदरवाइज का मतलब अगर आप जिन जिन सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड कर रहे हो उनमें किसी एक का भी अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो जो नेट टोटल होगा, जो नेट रिजल्ट होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा. तो अब आपको एक चीज पता लग गई है, whenever you add or subtract a simple harmonic motion onto another simple harmonic motion, you have to first check whether they have the same frequency or same omega value or not. If they have the same omega value, then you can be 100% sure that the resulting waveform will also be a simple harmonic motion of the same frequency. इसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी का the resultant will have the same omega value as the parent waveforms. तो जो ऐड हो रहे हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी लेकर के रिजल्टेंट पैदा होगा, बस उसका एम्पलीट्यूड और फेस अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो अब अपन देखते हैं. यहां पर मैंने एक छोटा सा एनालिटिकल ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अपन इसको
अभी फॉलो नहीं करेंगे, अपन सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर मैंने ये बोला कि एक वेव फॉर्म में ले लेता हूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ये एसएचएम है क्या, पहले तो ये बताओ। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। और ये एसएचएम है क्या, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये एसएचएम है क्या? यस सर। ये भी एसएचएम है। इन दोनों में क्या फर्क है? पहला फर्क तो यह है कि इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका एम्पलीट्यूड a2 है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया था। ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड कम, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं। और दूसरा फर्क क्या है इन दो एसएचएम्स में? दूसरा फर्क यह है, इनमें से पहले कौन सा चालू हुआ था, y1 चालू हुआ था या y2 चालू हुआ था? जरा देख के बताओ। y2। y2 पहले चालू हुआ था बिकॉज इट इज प्लस अल्फा, यानी कि लीडिंग फेस एंगल है y2 पे, तो y2 पहले चालू हुआ था अल्फा एंगल से, उसके बाद y1 चालू हुआ था। तो इस तरह से थोड़ा सा फेस में फर्क वाला और थोड़े से एम्पलीट्यूड में फर्क वाला दो एसएचएम्स को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो क्या बनेगा रिजल्ट? ठीक है, इसी की टिप्पणी करने जा रहे हैं हम अपन एक एग्जांपल लेकर के। नाउ वी डायरेक्टली टेक एन एग्जांपल। एक सॉल्व एग्जांपल है एजी अंबेकर का ही। वी आर गोइंग टू ऐड x1 एंड x2। ठीक है, x1 15 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो इसमें फेस कितना हो गया x1 का, पाई बाई 6, और x1 का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 15। x2 इज 8 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो देखो cos आने से क्या है, एसएचएम नहीं रहा क्या? साइन और cos दोनों एसएचएम होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो x2 का एम्पलीट्यूड है 8 और x2 का फेस एंगल है पाई बाई 3। ठीक है, अब ये साइन है, ये कॉस है। साइन साइन भी हो सकते हैं, कॉस कॉस भी हो सकते हैं, कैसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। बट इवेंचुअली व्हाट यू हैव टू डू इज लेट अस सी व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज टू। ठीक है, इसको एक बार मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। ये जो प्रोसीजर है ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन करके आ सकता है, और जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं उस प्रोसीजर को एग्जैक्टली आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो पहला वाला मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। x1 इज इक्वल टू 15 साइन ओमेगा टी। अच्छा, पाई बाई 6 को जरा डिग्रीज में बताना, थोड़ा कन्वीनियंट मेरे को डिग्री लगता है, आप लोगों को पता नहीं कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट लगता होगा। पाई बाई 6 को रेडियन में लिखने की बजाय मैं डिग्री में लिखना चाहता हूं। बताओ कितना डिग्रीज है? 30। इट इज 30 डिग्रीज। ओके, x2 is 8 cos ओमेगा टी, पाई बाई 6, पाई बाई 3 कितना डिग्री? 60। पाई होता है 180 डिग्रीज, पाई बाई 3 कितना होगा? सर सॉरी सर, 60। सही है ना, 60 डिग्रीज। 60 होगा सर, 60। ठीक है, अब अपना काम क्या है, अपन एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखना चाहते हैं। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिए, अब आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड x1 प्लस x2। हाउ डू वी डू दिस? सबसे पहले तो आप चेक करो क्या इसकी ओमेगा सेम है क्या दोनों की, उसके बाद ही एडिशन पे चलना है अपने को। डू दीज सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और नॉट? यस सर। दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। तो अब अपन क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका जो आंसर बनेगा, लेट अस से लेट x1 प्लस x2 be equal to some x, and one thing is 100% sure that this x is also a simple harmonic motion। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा। मेरे को ये नहीं पता कि इसका फेस एंगल कितना होगा, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा। लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि ये ओमेगा जरूर बैठा होगा यहाँ पे टी के साथ में। तो मैं क्या कर सकता हूं,
जब मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन पक्का हो गई, सो कैन आई राइट that x1 plus x2 will definitely be of the form of some amplitude multiplied by sine omega t plus phi. ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. बस भाई मेरे को पता है कि सम करने पे सिंपल हार्मोनिक ही बनेगा, और सिंपल हार्मोनिक होगा तो उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, एक फेस होगा। तो मैंने एक बना दिया, एक मनगढ़ंत सिंपल हार्मोनिक मोशन बना दिया, और बोला कि अब मैं कुछ ऐसी मैथमेटिक्स लगाता हूं जिससे मेरे को ए पता लग जाए और फाई पता लग जाए। हो गया ना काम? यही करना है अपने को। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली राइट दैट माय ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, अब एक काम करो, x1 इज 15 साइन ओमेगा टी प्लस 30। क्या आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। वेरी गुड। ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपैंड करो और यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, a, और अब इसको भी एक्सपैंड करो, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड किया तो क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को जरा एक्सपैंड करके बताओ, क्या ये साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव हुआ क्या? यस Yes, सर। sir. ये तो हो गया मेरा LHS। RHS में बैठा है मेरा x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 को एक्सपैंड करेंगे, पहले x1 को एक्सपैंड करें। 15 साइन ओमेगा टी प्लस 30 है, ठीक है, तो 15 साइन ओमेगा टी कॉस 30 प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना? सही लिखा है क्या? Yes, sir. ये तो हो गया आपका 15 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब इसको एक्सपैंड करें, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? Cos A, cos B minus sin A, sin B. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो वो फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, x1 प्लस x2 करना है। तो x1 तो लिख दिया, दिस थिंग वाज x1 प्लस कांस्टेंट है 8, फिर कॉस ओमेगा टी प्लस 60 है, तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही है क्या? दिस इज x2। x1 प्लस x2 मेरा RHS है और LHS मेरा ये है। ठीक है, अब क्या करने का है, what is cos of 30? रूट 3/2। Root 3 by रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 है। ठीक है, अंडर रूट 3/2 का डेसिमल वैल्यू बता दो कोई मेरे को। RHS को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 15 multiplied by what is cos 30 in decimals? Please take a calc. 0.866. Point. 866. Okay. Sin 30 कितना है? 1/2. 0.5 ले लूं, प्लस 8 टाइम्स cos 60 कितना है? 1/2. 1/2
तो 0.5 cos ओमेगा टी माइनस साइन 60 कितना है? 0.866. RHS को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको RHS को और सिंप्लीफाई करो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.866? 12.99. ओके, ठीक है। व्हाट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5? 7.5. 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो गया 4 माइनस व्हाट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.866? 6.928. अब देखो, ये साइन ओमेगा टी की टर्म है, ये साइन ओमेगा टी की टर्म है, ये कॉस ओमेगा टी की टर्म है, ये कॉस ओमेगा टी की टर्म है। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। सो प्लीज फर्दर सिंप्लीफाई एंड गिव मी द आंसर। RHS को मैं फाइनली कैसे फॉर्म में लिखूं? 12.99 माइनस 6.928 कितना है? कितना आया? 6.062. 6.062 साइन ओमेगा टी, और 7.5 प्लस 4 कितना हो गया? 11.5. ये मेरा RHS तैयार हो गया। ठीक है, LHS की अब एक बार वापस से अपन तहकीकात करें। दिस वाज LHS, तो LHS को अगर एक्सपैंड कर लिया जाए तो क्या बनेगा? A cos phi sin ओमेगा टी प्लस A sin phi cos ओमेगा टी। This is left hand side. Now we know that your left hand side is equal to right hand side. This was the starting equation. ये देखो, this was the starting equation. Left hand side is equal to right hand side. यहीं से निकले थे अपन। अब आपको क्या करना है? कंपेयर, ये है नेक्स्ट स्टेप। द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? किसी को पता है क्या? देखो, एक तो होता है वेरिएबल और एक तो होता है कांस्टेंट। 3 is an example of a constant. X is an example of a variable. ठीक है, अगर आप 3 और x को मल्टीप्लाई कर लो तो वेरिएबल तो x है, 3 तो कांस्टेंट है, बट सिंस दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 is called as the coefficient of x. तो मेरे को ये बताओ, इस वाले टर्म में मैं एक टर्म का एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे, a cos phi sin ओमेगा t, इसमें वेरिएबल टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है? वेरिएबल टर्म तो साइन ओमेगा टी है, कांस्टेंट टर्म ए कॉस फाई है। वेरी गुड। तो कोएफिशिएंट क्या हुआ? ए कॉस फाई। A cos phi is the coefficient. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपने ये देखा कि भाई मेरा LHS RHS के बराबर है, और LHS और RHS में दोनों में साइन ओमेगा टी बैठे हैं, कॉस ओमेगा टी बैठे हैं। तो अगर LHS RHS के बराबर है तो इन दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स भी तो बराबर ही होंगे। लॉजिक है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. So can I say with full confidence
by comparison of the coefficients of sin omega t and cos omega t on LHS and RHS, दोनों साइड्स पे कंपेयर करूं तो मेरे को ये मिलता है. आई कैन से दैट a cos phi must be equal to 6.062 and a sin phi must be equal to 11.5. right or wrong? राइट. अब अगर आप देखें अपना उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज आवर पर्पस? आवर पर्पस वाज टू फाइंड द अननोन एक्सप्रेशंस ऑफ दिस एंटिटी a sin ओमेगा t प्लस फाई. आपने कहा था कि x1 और x2 को ऐड करने पे बन जाएगा. बस यही नहीं पता था कि a क्या है और फाई क्या है. ये दो चीजें नहीं पता थी, यही तो पता करना है अपने को. अब अपने पास में ये जो मैथमेटिक्स अपन ने लगाई है उसके चलते इवेंचुअली आपको a cos phi की वैल्यू मिल गई और a sin phi की वैल्यू मिल गई. अब आप लोग अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि लगाओ और मुझे बताओ कि इन दो रिजल्ट्स से मैं a को अकेला कैसे पकड़ूं और phi को अकेला कैसे पकड़ूं. टेल मी अ टेक्निक और अ मैथमेटिकल ट्रिक टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ a एंड phi. क्या करेंगे बताओ? डिवाइड की वैल्यू निकाल के साइन फाई में पुट कर देंगे सर. नहीं, डिवाइड का किसी ने कुछ बताया था. डिवाइड किसको किससे करूं जरा अपॉन में a cos phi. अपॉन cos phi कर देंगे सर. क्या मैं a sin phi अपॉन a cos phi करूं यस सर. तो Yes, मेरे को sir. 11.5 अपॉन 6.062 मिल जाएगा, लेकिन a और a कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस विल यील्ड द वैल्यू ऑफ tan phi and now I can isolate phi as simply being the tan inverse of 11.5 upon 6.062. हो गया कि नहीं हो गया phi? अब phi का मान आपको डिग्रीज में मिलेगा अगर आप कैलकुलेटर को डिग्रीज पे सेट करते हो तो. ठीक है, phi का मान निकालें और इसमें पुट करें तो cos phi मिल जाएगा. cos phi की वैल्यू जब मिल जाएगी तो उसको डिवाइड कर दो यहां नीचे ला करके तो a मिल जाएगा. ऑल्टरनेटिवली आप phi को यहां पर भी पुट कर सकते हैं, उससे sin phi मिल जाएगी और sin phi को 11.5 के नीचे ले जाकर डिवाइड करोगे तो आपको तब भी a मिल जाएगा. दोनों केस में a सेम आएगा. So do you now understand the procedure of adding two SHMs? अब अपन को a और phi की वैल्यू पता लग गई. चलो एक काम करते हैं, अपन ने इतना काम कर ही लिया तो अब इसका आगे इसको फिनिश भी कर दो. मेरे को डिग्रीज में बताओ phi की वैल्यू कितनी आई है. 62.2. वेरी गुड. 62.2 डिग्रीज आपने अगर डिग्रीज में कैलकुलेट किया तो. ठीक है, अब phi अगर 62.2 डिग्रीज है तो अब आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो. a cos phi equal to 6.06 या फिर a sin phi is equal to 11.5. But please tell me the value of a also. 13. Very good. a is equal to 13. अच्छा, आपने अभी तो phi पहले निकाला, a बाद में निकाला. अगर मैं a पहले निकालना चाहूं तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? एक ट्रिक और आपको ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा. सी, a cos phi आपको पता है, a sin phi आपको पता है. ठीक है, स्क्वायर इट a square cos square phi, स्क्वायर इट a square sin square phi. अब कुछ कर सकता हूं मैं इसका? बस कर दो ऐड सर. कर दो सर. ऐड कर दो. हो गया ना काम? तो अब आप लोग इस रिजल्ट में से डायरेक्टली अगर a निकालना चाहें, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को तो a निकालना है सीधे, phi से मतलब ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? You can directly say that a is equal to under root of 6.062 का स्क्वायर प्लस 11.5 का स्क्वायर. सही है कि नहीं, देख के बता दो. हाँ सर. सही है ना? तो एक ये ट्रिक भी याद रखना, a अगर अकेला पूछा हो तो डायरेक्टली ऐसे भी मिल जाएगा a, और अगर आपको phi निकालना हो तो डिवाइड करके tan इनवर्स करना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड phi. a की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बता दो. 13 आई थी. सो योर आंसर इज
x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव आपने माना था SHM का रिजल्ट, ठीक है, समेशन का. सो योर आंसर इज इक्वल टू 13 साइन ओमेगा t प्लस 62.2 डिग्रीज. दिस इज द आंसर. क्लियर हो गया कैसे एडिशन करते हैं? भास्कर माथुर, जयेश वर्मा, रजत गगर, सब लोग म्यूट करें. जब आपको क्वेश्चन पूछना हो या डाउट पूछना हो तो ही आप अपना माइक ऑन करें. सर म्यूट है मेरा तो. अच्छा, यहाँ पे मेरे को देखा चितेश गर्ग का चालू है. सब म्यूट ही कर रखा मैंने. चितेश आप कर लो, म्यूट कर लो. ठीक है. अपना सॉल्व एग्जाम्पल इसका समेशन करना नहीं था. इसका समेशन करके मैंने आपको वो प्रोसीजर सिखा दिया जो यहां पर मैंने थियोरेटिकली डिपिक्ट कर रखा है. कैसे अपन tan इनवर्स करके ये निकालते हैं, कैसे अपन इन वैल्यूज का अंडर रूट लेकर के a निकालते हैं. ये सारी चीजें अभी अपन ने विद एन एग्जाम्पल कर ली. सो यू नीड नॉट कंसिडर दिस होल पार्ट. ये पार्ट आप देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया तो अब आपको इस थ्योरी की जरूरत नहीं है. ठीक है. बट एनीवे, लेट अस सी कि इस प्रोसीजर को अपन एक्सटेंड कर पाते हैं क्या. क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़िए. अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू हार्मोनिक मोशंस, दिस एंड दिस. यानी कि दो हार्मोनिक मोशन तो आपने बॉडी को लगा करके अप्लाई कर दी. क्वेश्चन ये था, व्हाट एक्स्ट्रा हार्मोनिक मोशन गिवन टू द बॉडी विल ब्रिंग इट टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? मैंने कहा कि भाई ये फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन और सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैंने बॉडी को दे दिए, तो इसके रिजल्टेंट में जो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, वो ये चल रहा है. अब इन दोनों का रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन ये बन रहा है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों के अलावा एक और हार्मोनिक मोशन में कौन सी वाली दूं जिसके देने पे बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, या फिर द बॉडी विल बिकम स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक, इट विल ब्रिंग द बॉडी टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इसका क्या मतलब है? क्या करना है अपन को इसमें? कोई जरा प्रोसीजर बता सकता है मुझे? सर इनके रिजल्टेंट का नेगेटिव एम्पलीट्यूड देकर सिंपल हार्मोनिक दे देंगे तो वो नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा. इसको करने के दो तरीके हैं. ठीक है. एक तरीका तो ये है, देखो जो किताब वालों ने किया हुआ है उसका तरीका तो ये है कि भैया x1 और x2 तो दे ही दिया आपको. अब आप बोल रहे हो कि एक अननोन सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेके आ जाओ. तो अननोन सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी भी बनाना हो ना, यू डायरेक्टली गो एंड कंस्ट्रक्ट इट लाइक दिस, a sin ओमेगा t प्लस 5. बस इसमें अब a और 5 को कैसे भी अपन को पता करना है. ठीक है. तो बोलना कि आपने बोला कि एक तीसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन को और ऐड किया गया. सो यू आर एडिंग दिस हियर and now the net resultant becomes the static equilibrium. तो इसका मतलब x1 plus x2 plus x क्या हो जाएगा? क्या बन जाना चाहिए ये? क्या क्या लगता है भाई? x1 और x2 को जब डाला था एक साथ तब तो कुछ हार्मोनिक मोशन बन रही थी, लेकिन एक आपने x और डाली तो आपकी पूरी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गई. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है? मोशन क्या है? मोशन है कि नहीं है? बताओ. मोशन नहीं है, स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब स्थिर हो गई, वो चलना ही बंद हो गई. तो अब मेरे को बताओ x1 प्लस x2 प्लस x का मान कितना आना चाहिए? x1 x2 x वगैरह क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ना. तो जो चीज चल नहीं रही है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. 0.
ये मैथमेटिक्स लगानी है आपको। तो क्वेश्चन जो था अपना, मैंने आपको ऐड करना तो सिखा दिया, लेकिन अब ये ट्रिकी क्वेश्चन दिया इन्होंने, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके आरटीयू में। बहुत सीधे सीधे एडिशन का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चांस है कि आपसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए। भाई इसमें कॉन्सेप्ट वही होगा, सिंपल एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। नाउ ऑल दैट यू हैव टू डू इज, x1 और x2 तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे ही रखे हैं, x1 को एक्सपैंड करो, x2 को एक्सपैंड करो, और इस x को भी एक्सपैंड करो जिसमें ये अननोन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और उसके बाद इन सबको उसी तरीके से ऐड करो, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के टर्म्स को कॉमन लेते हुए ऐड करके, और उसके बाद आप इसका पता करने की कोशिश करो। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, आपको ये इक्वेशन तो मिली गई है, so you can say that x is equal to minus x1 minus x2, ये कह सकते हैं क्या? Yes, क्या मैं sir. ऐसा लिख सकता हूँ कि इससे? तो अब ये सिंपल एडिशन का कॉन्सेप्ट ही तो हो गया। आप पहले x is equal to x1 plus x2 तो कर ही चुके हो x निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, x1 x2 पता है, उन दोनों पे माइनस साइन लगा करके ऐड कर दो, वापस से एडिशन का क्वेश्चन बन जाएगा। So you will eventually find the value of x, which if additionally added to the sum of x1 and x2 will bring the body to static equilibrium or zero. तो अब ये आपका होमवर्क है, all of you please try it। देखो अगर आप लोगों को स्कोर करना है तो सिर्फ ये बहाने बहाने की क्लास में आकर के और अटेंडेंस चालू करके, देखो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनसे नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों से बोल रहा हूं, एंड everybody knows that there are a lot of people like this। आप लोग कई सारे लड़के हैं जो कि सिर्फ प्रेजेंस दिखाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, और वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि अपन बाद में पढ़ लेंगे यार, परीक्षा के टाइम पे पढ़ लेंगे। अब देखो ये कोरोना वोरोना सब चीजें अब वैनिश हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, अपने वो सेकेंड वेव आ गया है, वो सब है, लेकिन अब आपके लॉकडाउन लगना और आगे की जो एग्जाम्स हैं उसके ऑनलाइन होने की गुंजाइश बहुत कम है। Most probably your exams from now onwards will be all offline। तो अब आप इस सुखमय वातावरण में मत रहना कि भाई अपने तो ऑनलाइन होगी, टिप टाप करके पास हो जाएंगे अपन। ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार रहें, तो उसके लिए रेगुलर पढ़ाई जरूरी है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आज की क्लास में आपको चीजें समझ में आ गई हैं, प्लीज ट्राई टू फाइंड दिस आंसर। सर फर्स्ट मिड टर्म कब तक होने के चांसेस हैं? फर्स्ट मिड टर्म आपका देखो, एक तो सेमेस्टर ये शॉर्ट ऐसा बताया जा रहा है, जल्दी होंगे आपके। मैंने अपने को पता है क्या फर्स्ट मिड टर्म कब तक होंगे, कोई अंदाजा है? नहीं सर, कोई अंदाजा नहीं है। होली के बाद, अप्रैल में ही? अच्छा, नहीं यहाँ पे भी मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे फैकल्टी से इज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। तो देख लेंगे अपन, आरटीयू के कैलेंडर के हिसाब से जो है वो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, और पूरा ओवरऑल सेमेस्टर ही शॉर्ट है आपका। तो सर फाइनल पेपर्स हमारे जुलाई में होंगे? यार ये मेरे को भी नहीं पता, मेरे को देखना पड़ेगा इसका, आई विल हैव टू चेक इट आउट, कैलेंडर के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ बोलो सर, वो लेक्चर नोट्स आपने अपलोड नहीं करे, ये वाली आप पढ़ा रहे हो जिससे वो वाले? ये दे दिए ना मैंने, दोनों को दे दिए, ए सेक्शन बी सेक्शन। सर हमारे क्लास में तो आने वाले हैं सर। लिंक भेज यार दीजिए आपने। ये देखो यार, तुम क्या बात कर रहे हो, आप कौन से सेक्शन के हो? ए सेक्शन सर। ये क्या है? टुडेज लेक्चर नोट्स या अटैचमेंट, व्हाट इज दिस? आपके क्लासरूम में पोस्टेड है ये क्लासरूम में। आप जो क्लासरूम के नोटिफिकेशंस हैं उसको ऑन करके रखो मोबाइल में। अरे सर, इसने क्लासरूम नहीं खोला होगा कल, इसलिए पता नहीं चला। क्लासरूम के नोटिफिकेशंस ऑन करके रखो और क्लासरूम चेक किया करो बीच बीच में, इसी में ही आएगा आपके सारे मटेरियल, इसी में दूंगा मैं, लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर के लिंक, सब कुछ इसी में आ जाएंगे आपके पास। आपको कभी भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थिंग विल बी ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड। ठीक है, इसको चेक करना, इसका आंसर ये आता है कि नहीं। आपको आई एम 100% श्योर कि एंगल में कुछ गड़बड़ जरूर आएगी, लेकिन एंगल का गेम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल सर ये सिखाऊंगा। नेगेटिव है तो सर 180 प्लस हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव के जैसे उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कल क्लियर करूंगा। इस वाले का आंसर अपन कल डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज क्लास,
बट विथ योर कैलकुलेटर्स एंड स्टफ। ठीक है, थोड़ा सा खुद आप कैलकुलेशन वगैरह साथ साथ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ प्लीज स्टे विथ मी व्हाइल आई टेक योर अटेंडेंस। Okay, sir.